Friends, now let's continue with sums of assignment of chapter number 3. Four sums we have covered. Now we come to fifth one. A motorcyclist covers one third of given distance with a speed of 10 km per hour. Next one third at 20 km per hour, and last one third at 30 km per hour. What is the average speed of motorcycle for entire journey? A similar sum we have already done in the textbook. This is one of the important type of sums, and therefore we are taking it with some changed values. You are given that a journey from A to B. Let's suppose this point A, this point B. Journey from A to B. Let's say total distance is D. Is done in three parts. Let's say A to C, C to D, and D to B. During A to C, the distance D by 3 is covered with the speed of 10 km per hour. The other distance D by 3, C to D, is covered with the speed of 20 km per hour, while the remaining D by 3 is covered at a speed of 30 km per hour. We have to find the average speed during the entire journey. Now here, for part AC, speed is 10 km per hour, distance covered is D by 3. Let's find out the time taken. Now we have V equal to D by T, so therefore T will be equal to D upon V. So we use formula for the time as D upon V. So time T will be equal to D by V. Putting up the values, T1 equal to D by 3 upon 10, that is D by 30. ये first part के लिए हो गया. For second part, for CD, for part CD, V2 equal to 20 km per hour, D2 equal to D by 3. इधर भी distance for D by 3 है, and time taken suppose T2 को देते हैं. Now T equal to D upon V. Therefore T2 will be equal to D by 3 upon V2, that is 20. So this will be D by 60. Third part, for DB. For DB, speed V3 is 30 km per hour. Distance covered D3 is equal to D by 3. Time T3 क्या होगा देखते हैं. तो T equal to D upon V. Therefore T3 will be equal to D by 3 upon 30, that is D by 90. तो ये हो गया रिगार्डिंग टाइम इंटरवल फॉर ईच वन. हमें एवरेज चाहिए फॉर द एंटायर पाथ. एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो पहले टोटल टाइम फाइंड कर लेते हैं. टोटल टाइम टेकन T is equal to T1 plus T2 plus T3, and that will be equal to T1 is D by 30, T2 is D by 60, T3 is D by 90. ये तीनों ले लें, D by 30, D by 60, D by 90. तो यहाँ पे अगर देखें तो 180 आया, एलसीएम बनेगा 6 plus 3 plus 2, that is 11 by 180. Okay. Now, average speed during the entire path, complete path, average speed is equal to total distance covered upon total time taken. That is D upon 11 D by 180. So this will come out to be 180 by 11, and that comes out to be 16.36 km per hour. So that is the average speed of the entire journey. Clear? So what you get is average speed V is equal to 16.36 km per hour. तो ये सम तो टिपिकली टेक्स्ट बुक के सम जैसे हो गया. उसमें वैल्यूज दी थी 10, 20 और 60. हमने लिया 10, 20 और 30 जस्ट एक रिवीजन के लिए. ओके. नेक्स्ट वी स्टार्ट विद 6 नंबर. द क्वेश्चन गिवन इज डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 40 km. A train takes 1 hour to travel this distance. After starting from first station, it moves with constant acceleration for 5 km. Then it moves with constant velocity for 20 km. And finally, its velocity keeps on decreasing continuously for 15 km. And it stops at other station. Find the maximum velocity of the train. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Okay, एक स्टेशन A से दूसरा स्टेशन B. Total distance is 40 km. And total time taken to reach there is 1 hour. तो सर एवरेज स्पीड ढूंढनी है. नहीं, एवरेज स्पीड तो आ गया ना 40 km per hour. यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है
कि ड्यूरिंग दिस जर्नी फ्रॉम ए टू बी, ड्यूरिंग फर्स्ट 5 किलोमीटर कमिंग फ्रॉम ए टू सी, ड्यूरिंग फर्स्ट 5 किलोमीटर इट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये ना एक्सेलरेटेड मोशन है यहाँ पे, लेट्स से ए बोल देते हैं, एक्सेलरेशन ए। फिर उसके बाद फॉर देन इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 20 किलोमीटर, सी से डी, सी से डी ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, बराबर है। यानी सी पे जो वेलोसिटी वही वेलोसिटी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी 20 किलोमीटर की उसने में, एंड द लास्ट 15 किलोमीटर रिमेनिंग, last 15 kilometer remaining it covers with deceleration, finally stopping at station B. Hope this question is clear. Start किया A से with initial speed 0, चलो स्पीड उसकी नोट करते हैं अलग अलग जगह पे ट्रेन की। A पे स्पीड 0 है, फिर B पे बढ़ के X, C पे बढ़ के X हुई, एक्सेलरेटेड मोशन इससे इंक्रीज होकर X हुई, फिर ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम C to D it remains constant as X, फिर बाद में B पे अल्टीमेटली स्टॉप्स, स्पीड डिक्रीज होते होते स्टॉप्स एट बी। तो स्पीड में इंक्रीज हुआ 0 to x, फिर x कांस्टेंट रहा, फिर डिक्रीजिंग बैक टू 0। ओके, ये बोला हुआ है। तो हमको बोले कि फाइंड द मैक्सिमम स्पीड। अब मैक्सिमम स्पीड कौन सी, ऑब्वियसली x हो गया। कैसे, तो चलो इस मोशन, इस जर्नी को ग्राफिकली देखते हैं। लेट्स प्लॉट द ग्राफ ऑफ स्पीड वर्सेस पोजीशन। 0 यानी स्टेशन ए हुआ, फिर सी पॉइंट जो 5 किलोमीटर का है, सी पॉइंट वहां तक स्पीड बढ़ी, 0 से बढ़ के x हुई, लेट्स से x की 5 किलोमीटर पे x स्पीड हुई, फिर 5 से लेके 25, तुम बोलोगे 20 किलोमीटर नहीं है सर, हाँ तो 20 + 5 25 है ना पोजीशन डी पॉइंट का, तो ये पॉइंट ये हो गया। ड्यूरिंग दैट द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, यानी सी से डी तक कांस्टेंट स्पीड हो गया। ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस, ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस, फिर बाद में रिमेनिंग 15 में स्पीड डिक्रीज होकर 0 हुआ, ये आ गया फाइनल पॉइंट, सॉरी 40 किलोमीटर बी पॉइंट। तो ड्यूरिंग द मोशन स्पीड इंक्रीज हुआ 0 से x, फिर x कांस्टेंट रहा एंड फिर डिक्रीज होकर 0 हो गया। तो मैक्सिमम स्पीड कौन सा हुआ ड्यूरिंग द जर्नी, हो गया, यानी कि x इज द मैक्सिमम स्पीड। तो अपना टारगेट है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। ओके, यही हमको दिया हुआ इतना है। अब फॉर्मूला फिर से एक बार याद कर लेते हैं फॉर्मूला सारे, ताकि आज के सम्स में हमें इजी पड़े। फॉर्मूला कौन कौन से थे तो याद करा दो, तो v = v0 + at पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला d = vot + ½ at², तीसरा इक्वेशन 2ad = v² - v0², चौथा इक्वेशन d = एवरेज स्पीड इनटू टाइम इंटरवल, पांचवा ड्यूरिंग nth सेकंड वाला फॉर्मूला dn = v0 + a/2 × 2n - 1। ये 5 फॉर्मूला हमें यूज करना है, इनमें से फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू x। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर पाथ AC, इनिशियल स्पीड कितनी है 0, फाइनल स्पीड AC में x, डिस्टेंस कवर्ड 5 किलोमीटर। फिर क्या ले सकते हैं, तो टाइम को t1 बोल देते हैं, टाइम टेकन t = t1। कीपिंग दिस डेटा इन व्यू, विच फॉर्मूला विल बी सुटेबल, ये डेटा है हमारे AC के लिए हमारे पास। तो कीपिंग दिस डेटा इन व्यू, फोर्थ फॉर्मूला विल बी सुटेबल, d = v0 + v/2 × t। चलो वैल्यू पुट अप करते हैं। तो d is 5 = 0 + x/2 × t1। तो therefore t1 comes out to be 10/x, पहले पाथ में हो गया। फिर दूसरे पाथ के लिए फॉर CD, अब CD पाथ में स्पीड कितना है, x कांस्टेंट है, नो इनिशियल नो फाइनल, बोथ आर सेम। कांस्टेंट स्पीड में v दिया हुआ x, स्पीड दिया हुआ x, डिस्टेंस को 20 किलोमीटर, टाइम को सपोज t2 बोल देते हैं ना। एज इट्स अ कांस्टेंट स्पीड मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, तो फॉर
यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये फॉर्मूला नहीं रखेंगे, उसमें तो सिंपल से v इक्वल टू डी बाई टी, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 by t2, देयरफॉर t2 विल बी इक्वल टू 20 by x, ये सी डी के लिए आ गया। फिर फॉर थर्ड पार्ट, फॉर db, db में इनिशियल स्पीड x है, फाइनल स्पीड 0 है, टाइम कितना लग रही है t3 बोले, सर डिस्टेंस कवर ले लेते, सॉरी डिस्टेंस कवर d इज 15 किलोमीटर एंड टाइम को चलो सपोज t3 बोल देते हैं। तो यहाँ देखो तो सेम फर्स्ट टाइप वाले फॉर्मूला है, फर्स्ट सेक्शन वाले फॉर्मूला काम आएगा यहाँ, d इक्वल टू v0 प्लस v बाई 2 इंटू टी, सो व्हाट यू गेट इज 15 इज इक्वल टू x plus 0 by 2 into t3, so therefore t3 will come out to be 30 by x. Okay, our purpose is to find the value of x, तो टाइम मिल गया है, टोटल टाइम 1 आवर दिया हुआ है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे, therefore total time taken t is equal to t1 plus t2 plus t3, t is 1 hour, तो 1 is equal to 10 by x plus 20 by x plus 30 by x, and that makes 60 by x, so therefore x will be equal to 60 kilometer per hour. That's the maximum speed during the journey. 0 से 60, 60 constant, फिर 60 से decreasing back to 0 in the last 15 kilometer. So this is how you do it. ये फर्स्ट सम में 1/3 लिया था, यहाँ थोड़ा अलग टाइप का सम है, मैथड ऑलमोस्ट सेम चल रहा है पर सम में थोड़ा चेंज है। Next we go on for 7 number. 7 number में question read somewhat like this: a motorcycle starting from rest moves with a constant acceleration of 2.6 meter per second square. After traveling distance of 120 meter, it accelerates with negative 1.5 meter per second square. Acceleration negative दिया मतलब deceleration हुआ, till its velocity becomes 12 meter per second. Calculate total distance traveled by motorcycle during this journey. टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया वो फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक मोटरसाइकिल है जिसने ए पॉइंट से शुरू किया, 120 मीटर चली विद एक्सेलरेशन 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर है, वहां बी पॉइंट पे पहुंची, फिर बाद में उसने ब्रेक लगाई तो डिसेलेरेशन हुआ है एंड सी पे पहुंची, डिसेलेरेशन कितना हुआ है, तो एक्सेलरेशन पे नेगेटिव 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना डिस्टेंस तो पता नहीं है, पर स्पीड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ दिस पार्ट बिकम्स 12 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड हो जाती है। तो हमें बोला है कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, स्टार्ट के यहाँ से 0 से अचीविंग सम स्पीड एक्स हियर, ये स्पीड की बात हो गई, 0 से शुरू किया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फॉर 120 मीटर मूविंग विद एक्सेलरेशन 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन पॉजिटिव इसलिए बढ़ेगी स्पीड, बढ़ के एक्स हुई, बाद में ब्रेक लगाई, नेगेटिव स्पीड हुई है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, तो स्पीड डिक्रीजिंग बिकमिंग 12 एट पॉइंट सी। तो यहाँ से ए से लेके सी तक कितना डिस्टेंस कवर किया वो फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस। सपोज ये पार्ट 1 के डिस्टेंस को d1 बोल दे, सेकेंड पार्ट के डिस्टेंस को d2 बोल दे, तो वी नीड टू फाइंड टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस d विल बी इक्वल टू d1 प्लस d2। d1 तो है हमारे पास में, तो दिस 120 प्लस, अब ये ढूंढना है दूसरा d2 ढूंढने के लिए डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो उसके लिए देखें तो डेटा क्या दिया हुआ है, फॉर पार्ट बी सी इनिशियल स्पीड x है, फाइनल स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन नेगेटिव 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्टेंस कवर d2 है। कौन सा फॉर्मूला सुटेबल रहेगा अगर इन चार के डेटा को देखें तो, बेस्ड ऑन द डेटा गिवन विच फॉर्मूला विल बी सुटेबल आउट ऑफ द 5, तो we can clearly see that is the third one which is more better here, 2AD equal to v square minus v0 square, the third one, so that is 2 into a negative 1.5 into distance d2 is equal to v square 12 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अगर x होता तो d2 मिल जाता। x ढूंढने के लिए क्या करेंगे, तो आगे के पार्ट में आ जाते हैं, फॉर ए बी में देखो तो इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड x, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द जर्नी 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस कवर दिया 120 मीटर, तो इधर कौन सा फॉर्मूला सूटेबल रहेगा इस केस में,
based on the data given to you. V0, V, A and D दिया है, तो it's the same one. Third formula will be useful. 2AD equal to V square minus V0 square. So 2 into 2.6 into D 120 is equal to V square x square minus 0. तो therefore what we get is x square is equal to, ये तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 624 आता है, तो therefore x will be equal to root of 624. You know the nearest number 625 is a perfect square of 25, तो ये approximately 25 रहेगा. This will be approximately 25 meter per second. Okay, तो यहाँ पे वैसे भी स्क्वायर ही रखना है, रूट करने की कोई जरूरत नहीं है, 624 डायरेक्ट कर देते हैं. तो दिस विल बी -3d2 विल बी इक्वल टू 144 माइनस 624, एंड ये डिफरेंस आएगा 480 का नेगेटिव, एंड ये माइनस साइन 3d2, सो d2 विल कम आउट टू बी नेगेटिव नेगेटिव है 480 बाई 3 एंड दैट इज 160 मीटर. क्या लगाते हैं 160 मीटर, so this will be 280 meter. So therefore total distance for D is during the entire journey is 280 meter. Okay, समझ ये. तो डेटा जज करना है इधर, हो सके वहां तक मोशन के सम्स में ड्रॉ फिगर, दिस टाइप ऑफ फिगर which indicates your data completely, and ये फिगर होगा तो you'll be easily able to get the solution. You'll be easily able to identify the quantities given and the solution. Alright, so make a practice, make a habit of creating such figures. Okay, ये हो गया sum number 7. So now going on for the 8th sum. 8th sum में English का जानना जरूरी है, इसलिए you have to be very careful regarding understanding of the sum. क्वेश्चन बराबर समझना ध्यान से, अगर ये समझ में नहीं आए तो इसका सॉल्यूशन कभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्लीज फोकस ऑन द सम. A person walking in straight line covers half of the distance to be traveled with the speed of v0. For half of the time required to complete the remaining distance, he walks with speed of v1, and for remaining half time, his speed is v2. What is person's average speed during this complete walk? Obviously थोड़ा बहुत अंदर कंफ्यूज हो गए होंगे, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसे. A person walking in a straight line, बराबर है, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है बंदा, टोटल डिस्टेंस है आधा डिस्टेंस, कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस टू बी ट्रैवल्ड विद द स्पीड v0, आधा डिस्टेंस v0 स्पीड से कवर कर रहा है. फिर फॉर हाफ ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, द रिमेनिंग हाफ, उसको कवर करने में जो टाइम लगता है उसका आधा टाइम. ध्यान रखो, पहले डिस्टेंस हाफ किया, अब बाकी के हाफ में टाइम को आधा आधा कर रहे हैं. Half of the time required to complete remaining distance he walks with speed v1, and the remaining half time with speed v2. हमें find करना average speed of this person. Person ने start किया A से, B पे आया, B से फिर C पे आया. ये distance को D बोलते हैं, ये भी distance D, तो total distance 2D बोल रहा है. आप बोलोगे सर आधा आधा distance करना था तो यहाँ अगर D बोलते तो यहाँ D/2, यहाँ D/2 करना पड़ता. अब fractions थोड़े तकलीफ वाले होते हैं, इससे बेटर है इसको d2d ले लेते हैं, तो ये आधा डिस्टेंस d हो गया, ये आधा डिस्टेंस d हो गया. ओके, अब ये हाफ डिस्टेंस में कवर किया हुआ स्पीड v0, ये कवर किया हुआ स्पीड v0. लेट अस से द टाइम टेकन इज t1 ड्यूरिंग दिस जर्नी. ओके, फिर b से c डिस्टेंस d, उसका आधा नहीं करना है, इसमें जो टाइम लिया उसको आधा करना है. तो इस bc के टाइम को चलो 2t2 बोल देते हैं, BC के टाइम को 2t2 बोल देते हैं, 2t2. यानी कि यहाँ तक सपोज ये पॉइंट D, यहाँ तक t2 टाइम कवर्ड विद स्पीड v1, ये बाकी का t2 टाइम कवर्ड विद स्पीड v2. इज द क्वेश्चन क्लियर? यहाँ पे B से C जो आधा डिस्टेंस है D, उसको कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा टोटल, लेट्स से 2t2 बोल देते हैं उसको. ओके, टाइम टेकन रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस पे टाइम टेकन को 2t2 बोल दिया. t2 टाइम पे v1 स्पीड से, बाकी के t2 टाइम में v2 स्पीड. मैंने जानबूझ के इन दोनों को अलग बताया क्योंकि स्पीड अलग अलग है, इसलिए डिस्टेंस को अलग अलग होगा. क्लियर? नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड तो होप यू रिमेंबर, एवरेज स्पीड इज गिवन एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. अब टोटल डिस्टेंस कितना है, 2d है, टोटल टाइम कितना होगा t1
plus 2t2. Total time taken will be equal to t equal to t1 plus 2t2. याद आ गया ना, ख्याल आ गया ना, ये t1 है, ये t2 एंड t2 दो इक्वल पार्ट, तो 2t2 हो गया। रिमेंबर वेल, टाइम को आधा नहीं है, डिस्टेंस आधा किया, फिर टाइम को आधा किया दूसरे पार्ट में, बीसी पार्ट में। चलो अब इसको स्टडी कर सॉल्व करते हैं। फॉर एडी पोर्शन, फॉर ए बी, सॉरी पहला पार्ट फॉर ए बी, स्पीड v0 है, डिस्टेंस कवर d है, टाइम टेकन t1 है, तो t1 विल बी इक्वल टू d अपॉन v0, टाइम लेना है टोटल। फिर फॉर पार्ट बी डी, डिस्टेंस कवर्ड पता नहीं है, टाइम टेकन t2 है, स्पीड v1 है, और डिस्टेंस कवर्ड सपोज d1 बोल देते हैं, d1 बोल देते हैं, बराबर है। तो क्या आएगा यहाँ पे, d1 इज इक्वल टू v1 इंटू t2, क्योंकि डिस्टेंस d के टर्म्स में लेना है ना, इसलिए तो यहाँ के डिस्टेंस को d1 बोलते हैं, यहाँ का डिस्टेंस d2 बोल देते हैं। तो फॉर dc, फॉर dc क्या आएगा, टाइम टेकन t2 है, स्पीड v2 है, डिस्टेंस d2 बोला हुआ है, तो d2 विल बी इक्वल टू v2 इंटू t2। तो therefore total distance d during the bc part, d will be equal to d1 plus d2, and that is v1 t2 plus v2 t2. Okay, so that is t2 common, v1 plus v2, so we can say t2 is equal to d upon v1 plus v2। ये t1 आया, ये t2 आया, चलो रख देते हैं यहाँ पे। तो what you get is t1 is d by v0, टोटल टाइम ले रहे हैं, d by v0 plus 2 into d by v1 plus v2। सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा d कॉमन 1 अपॉन v0 प्लस 2 अपॉन v1 प्लस v2। अभी फिलहाल में रहने देते हैं ना। ये टोटल टाइम को यहाँ रखते हैं, एवरेज स्पीड will be 2d upon d into 1 upon v0 plus 2 upon v1 plus v2। डी डी कैंसिल हो गया, तो रिमेन्स 2 अपॉन, अब नीचे एलसीएम लेते हैं, 2v0 प्लस v1 प्लस v2 अपॉन 2v0, सॉरी v0 इंटू v1 प्लस v2, नीचे एलसीएम ले लिया, ये नीचे का पार्ट आ गया, इन्वर्ट कर लेते हैं। तो व्हाट यू गेट इज ट्वाइस v0 इंटू v1 प्लस v2 अपॉन 2v0 प्लस v1 प्लस v2। दस एवरेज स्पीड क्या बना, 2v0 इंटू v1 प्लस v2 अपॉन 2v0 प्लस v1 प्लस v2। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पे वर्डिंग पे खास ध्यान देना है, इसलिए मोशन के सम्स में खास बी केयरफुल, इन सम्स ऑफ मोशन यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड फिर उसको फिगर में रिप्रेजेंट करो, तो ही आपका आंसर 100% परफेक्ट निकलेगा। अगर कहीं गड़बड़ हो गई, बिना फिगर बनाए डायरेक्ट जंप करने की कोशिश की, सम को क्रैम किया, तो यू माइट लूज द होल्ड ऑन द सम, द ग्रिप ऑन द सम विल गो ऑफ। इट बी वेरी गुड, दिस इज टिपिकल केस ऑफ दिस सम। इससे हाई लेवल हमारे 11th के लेवल 11 में नहीं आएगा, इससे हाई लेवल नहीं जाएगा। नेक्स्ट वी टेक द 9th number. After a heavy dose of 8th one, let's take a little bit simpler sum, 9th number. An object is moving with constant acceleration. Its velocity is 48 meter per second at the end of 10 seconds and becomes 68 meter per second at the end of 15 seconds. What would be the distance traveled by the object in 15 seconds? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट ने मोशन शुरू किया हुआ है, एक मूव कर रहा है, सॉरी मोशन शुरू नहीं किया, मूव कर रहा है, तो एट टाइम 10 सेकेंड स्पीड उसकी 48 मीटर पर सेकेंड है, एंड इन टाइम 15 सेकेंड उसकी स्पीड 68 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें बोला है कि ड्यूरिंग दिस 15 सेकेंड हाउ मच इज द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा। अब टाइम के टर्म्स में डिस्टेंस चाहिए, तो 3 फॉर्मूला में से डिस्टेंस 2 में ज्यादा जल्दी मिलता है, बराबर है। टाइम के टर्म्स में डिस्टेंस चाहिए तो सेकेंड फॉर्मूला इज बेटर। तो टू फाइंड द डिस्टेंस d इक्वल टू वी ओ टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये ज्यादा सुटेबल रहेगा, बराबर है। अब हमारे पास टाइम t दिया हुआ है, v0 एंड a इनिशियल स्पीड एंड एक्सेलरेशन मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, गिवन डेटा को यूज करते हैं। To find initial speed and acceleration, let's use the given data.
ओके, अब टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इनिशियल स्पीड चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्मूला विल बी बेटर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, वी यूज द फर्स्ट फॉर्मूला v इक्वल टू v0 प्लस at। पहले केस में अप्लाई करें तो v 48 इज इक्वल टू v0 प्लस a, फाइंड करना है एंड t इज 10, तो 10a हो गया। दूसरे केस में अप्लाई करें तो 68 इज इक्वल टू v0 प्लस 15 है। सिंप्लीफाई करें तो व्हाट यू गेट इज -20 इज इक्वल टू -5a, सो यू गेट a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 4 आ गया। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन वन ऑफ द इक्वेशन, व्हाट यू गेट इज 48 इज इक्वल टू, अच्छा इसे प्रॉपर वर्डिंग में लिख लेंगे तो यूजिंग a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इक्वेशन लेट्स से 1, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। इन इक्वेशन 1 व्हाट वी गेट इज 48 is equal to v0 plus 10 into 4, and therefore initial speed v0 comes out to be 8 meter per second। अब initial speed आ गई, acceleration आ गया, तो let's find out the distance covered। Thus, so after getting v0 and a, let's find out the distance covered जो पूछा है। तो पूछा है time t equal to 15 सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, d equal to v or t plus half a t square। Put up the values, initial speed has come to be 8, time 15 plus half is 4 into time is 15 का square, so this will be 120 plus 225 into 2 450 and that is 570 meter। तो distance covered का value आ गया 570 meter। This you can find by another method also, ये first method हो गई। You have one more method to find this distance। Distance time के टर्म्स में फाइंड करना, तो ये फॉर्मूला है, दूसरा ये फॉर्मूला है, बराबर। इसमें एक्सेलरेशन का यूज करना है, यहाँ पे फाइनल स्पीड का यूज करना है, दोनों हमारे पास में है। तो सेकंड मेथड अगर देखें, ये पार्ट सेकंड मेथड देखें तो d इक्वल टू v0 प्लस v बाई 2 इंटू टाइम इंटरवल। अब इनिशियल स्पीड कितना है, 8 है स्टार्टिंग में, प्लस एट 15 मीटर 15 सेकेंड इट इज 68 मीटर पर सेकेंड बाई 2 इंटू टाइम इंटरवल 0 से 15, तो 15 होगा। ओके, सो दिस ऑल्सो कम आउट टू बी 76 बाई 2, तो विल बी 38 इंटू 15 एंड विल बी अगेन 570। ओके, तो दोनों मेथड से हो सकता है, पर दोनों के लिए इनिशियल इतना पार्ट तो कंपल्सरी है, तो विच एवर ऑफ द टू यू फाइंड बेटर। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि सेकेंड मेथड भी यूजफुल ओनली इफ ये दोनों टाइम सेम होते हैं, क्योंकि 15 सेकंड पे मांगा है डिस्टेंस, 15 सेकंड पे स्पीड दी हुई है, तो ये काम आएगा। अगर मान लो सम को ट्विस्ट करके ऐसा बोला हो कि फाइंड द टाइम डिस्टेंस पर 18 सेकंड, तो उस टाइम पे ये मेथड काम नहीं आएगी, क्योंकि यू डोंट हैव स्पीड एट 18 सेकंड, तब आपको खाली फर्स्ट पे जाना पड़ेगा। इसलिए आई वुड एडवाइज यू टू गो बाय द फर्स्ट मेथड अदर देन गोइंग विद द सेकंड मेथड। हाँ, अगर दोनों ये सेम दिया हो, इसी टाइम पे अगर आपको बोला हो कि डिस्टेंस फाइंड करो, तो बराबर है। ओके, तो सेकंड मेथड भी फाइन। दैट्स सम नंबर 9।